आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है अपनी यूथ को मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर करें ताकि वो भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और इसमें कामयाब हो सके। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुमित गर्ग, हु इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ लग्जरी राइड्स। वेलकम टू आईआईडी। सो हाउ वाज द जर्नी सो फार? First of all, thank you, Panisha, for calling me here. And the journey for luxury ride was like a roller coaster ride, I would say. There were so many ups and downs we have seen in our so-called journey. And of course, it was lovely journey. And it is a lovely journey, and we have to go way forward and way ahead in our goals, vision. So, yeah, consists of so many struggles and challenges. So, 2012 में आपने जो है अपनी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की थी। yes. तो क्या सबसे मेजर चैलेंज था उस टाइम पर? So in 2012 we started with a basic only there was a passion involved. So from passion and starting from scratch, it was a difficult case. There was no direction, no nothing where we have to go. Only I have decided कि भाई गाड़ियों का काम करना है. We have to go in the car business. So there was so many dark road के कैसे करना है, but somehow we started from the digital online. We created a website called koibikar.com. So on that we used to post, if you want to sell your car, so we used to post that car on the Facebook or any other social media platform, and from there we were getting buyers. We started from the basic. So that was the tool we used in the initial, and then there were lots of challenges coming. Of course, the money part, which is a basic thing in any sort of startup or any business we do. So money is a basic thing which we always short of. So face the same problem, but again like a roller coaster, ठीक है, वो चलता रहा and we. आपका concept क्या था? So concept was, एक जो सोच थी वो ये थी कि भाई लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं those are very expensive car, Panisha. Like if you talk about any basic luxury car that start from 40-45 lakhs, and trust me, every man has a passion of luxury car, but they cannot buy. मतलब 40-45 lakhs का गाड़ी खरीदने के लिए you have to have a मतलब basic minimum monthly earnings and all that. So it is very, it is only high class product. So we had a vision कि भी इसको हम उन सब के लिए भी available कराएं who wants to own a luxury car in affordable budget, and not only buying car, also the servicing, maintenance of the same, because buying is one time job, but maintenance is regular, which will come every 3 months, 6 months, and so that was a vision. तो उस direction में we wanted to work. So वो हमारा एक concept. और उसमें challenges आए. Investment was the first challenge, और फिर marketing आपने इसकी कैसे की? Marketing तो from digital, I would say कि Facebook, Google is like God for our business, जिसकी वजह से हम पहुंचे. If I wouldn't have gone digital, तो I wouldn't have sitting here. Because that make you globally, मतलब चलो our catchment area was very small that time, but now it is pan India. So that time it was very very small, but before, without digital we couldn't reach to, like sitting in Karnal. I started my career from Karnal. So from sitting in Karnal, we cannot pitch a customer sitting in Punjab who we don't know, never met. So only the digital platform which makes it possible, and we use the same tool. So digital have played, and it was of course affordable also, or like Facebook and all पे तो if you are not willing to pay, तो simply you can create a page and you can start the things. धीरे धीरे promotion करते गए, फिर हम 500 रुपये का बजट, फिर 5000 तक का बजट, फिर 50,000 का भी बजट करा, और आज अच्छा मतलब वी आर स्पेंडिंग ऑन डिजिटल. सो दैट वाज द मार्केटिंग टूल. एंड अभी तो हमने लेटेस्ट तो वी हैव स्टार्टेड ऑफलाइन इवेंट्स ऑल्सो, उनका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है हमें. बट दैट टाइम इन इनिशियल टाइम और स्ट्रगलिंग टाइम देयर वाज ओनली डिजिटल वी वर डूइंग. और सबसे बड़ा जो रेफरेंस आता है वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है, लेकिन वो ठीक है, वो भी एक लिमिटेड ही रहता है, बट डिजिटल आपको हर जगह पहुंचा देता है. तो कॉन्सेप्ट आपका कैसे था? आपने कैसे स्टार्ट किया और फिर कैसे उसे डिजिटली आपने प्रमोट किया? तो
जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ियों के लिए वी हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट कोई भी car.com. So someone is selling the car, we posted online, we got the customer, very basic in very basic way. So we were getting the leads. तो वो on a commission basis we used to charge from the buyer and seller. तो उस तरीके से we started. उस टाइम पे सिर्फ हम बाइंग सेलिंग में ही कर रहे थे. तो so that was a pure commission based business. So later when we started Luxury Ride in 2015, then we adopted the concept that we started buying the cars, parking in our showroom, then selling. In 2016 we added service center to this, and we created India's biggest showroom. We call it. It is in Karnal. It is in 1 acre, 4 stories of display area. So we created that showroom in 2016. कोई भी car.com से लग्जरी राइड्स जो है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आपने चेंज किया अपना नाम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. मैं बताता हूँ इसका रीज़न. एक्चुअली क्या हुआ, जब हम इसमें काम कर रहे थे तो लोग अक्सर हमसे पूछते थे कि यार तुम लोग कोई भी car.com बोलते हो, बट यू आर डीलिंग ओनली इन लग्जरी कार्स. बात भी ठीक है भाई. हमारे लिए हम बिकॉज वी डिसाइडेड कि भाई फॉर्च्यूनर ऑल्सो, मतलब इनोवा, वी विल नॉट डू दोज कार्स, ओनली द लग्जरी कार्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी कार्स, सो वी टॉक अबाउट BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Range Rover, Jaguar, Volvos, Lexus, so those cars, so or some exotic cars, but we don't do. So people used to get confused, यार तुम कहते रहो कोई भी car.com, लेकिन तुम कोई भी कार नहीं दे रहे. मुझे तो भाई फॉर्च्यूनर चाहिए, दैट इज कोई भी कार. So that was somehow we were not convinced with the name. Although हमारा तो कैरियर उसी से स्टार्ट हुआ, we are very thankful to that name. But later फिर we decided कि नहीं, we will change something. So हम रात को बैठे बड़े नाम वगैरह सोचते रहे. तो फिर 50 नाम हमने लिस्ट बनाई. Then we finally Luxury Ride we finalized the name. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है 2 साल से बहुत गिरावट आई, तो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था कि जब आपको लगा कि मुझे किसी और बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए या ये नहीं होगा मुझसे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा जी, बिल्कुल भी नहीं सोचा, कभी मन में भी नहीं आया, और ना ही कभी. आई एम वेरी हैप्पी विद माई बिजनेस. एंड जो डाउन आया जी, उसमें मेरा ये मानना है शायद वो अच्छे के लिए आया है. डाउन तो आया है, हमने भी फेस किया है, अच्छा खासा फेस किया है. मतलब जो हमारे गोल्स थे, जो हमारे प्लान्स थे, वो हमारे शिफ्ट हो गए, वो हमारे पोस्टपोन हो गए. हमने तो जिस हिसाब से हमने कैसे मैनेज किया, स्ट्रगल किया जी. आई वुड से 3-4 महीने तो कुछ ऐसे गए. जब GST आपको ध्यान हो, जब आया था, तो उस टाइम तो इतना कंफ्यूजन हो गया था 1 जुलाई को 2017 को, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई किसकी क्या स्लैब, किसका क्या करना है. ठीक है, नोटबंदी के दौरान तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर एकदम इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि कैश का काम बिल्कुल बंद हो गया था. और अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी थैंकफुल कि भाई डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो कैश की ट्रांजेक्शन्स होती थी वो ख़त्म होगी. अब इट इज़ नॉट इवन 5%, इट इज़ गॉन. लेकिन हाँ, बिजनेस कम हुआ, डेफिनेटली बिजनेस कम हुआ है, बट फॉर द लॉन्ग रन, फॉर द फ्यूचर इट इज़ वेरी गुड. तो फिर GST आया, उसके बाद भी हैम्पर हुआ बिजनेस. 3-4 महीने तो बहुत कंफ्यूज्ड मार्केट रही थी, लेकिन ठीक है, देखो दैट्स फॉर द बेटरमेंट ओनली, आई वुड से. और हमें अच्छा ही है उसके लिए. उसके बाद एटलीस्ट उससे पहले ना हम रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थे. यूज्ड कार डीलर वर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड इन गवर्नमेंट स्लैब फॉर द वैट और वो सेल टैक्स. आफ्टर दैट दे रिकॉग्नाइज्ड एंड दे सेड कि भाई आप ठीक है, यू पे दिस GST एंड यू आर भाई ठीक है, यू आर देन ऑथोराइज्ड टू सेल कार्स. तो वो अच्छा हुआ हमारे लिए. बट येस, वी फेस्ड, वी स्ट्रगल, मतलब वेरी, आई वुड से अच्छा खासा टाइम हमारा स्ट्रगल में गया उस टाइम. बट ठीक है, नाउ वी आर सिटिंग हियर. लग्जरी राइड्स के पीछे विजन क्या था? तो लग्जरी राइड हैज़ अ विजन के वी वांट टू मेक लग्जरी कार अफोर्डेबल टू ऑल. नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ गोल. वी वांट टू हैव लग्जरी राइड इन 50 cities of pan India with service center, so they can cater the entire audience. मतलब wherever you go in India, you must be having service center of luxury ride within your range, so that you can have services there, you can buy, sell, you can do service. It is not like कि भाई सिर्फ दिल्ली में है, गुड़गांव में है, करनाल में है, लुधियाना में है, या देहरादून में है, जयपुर में, चंडीगढ़ में. नहीं, we want to have pan India, so this is our on which we are working. Okay, और आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? So यही जी, अभी तो वी आर इन नॉर्थ इंडिया, सो नाउ वी आर प्लानिंग टू सेंट्रल इंडिया, देन टू साउथ इंडिया. सो इसी तरीके से वी वांट टू एक्सपैंड एंड वी वांट टू ऐड सम मोर थिंग्स इन आवर लग्जरी राइड, जो कि अभी वर्किंग मोड में है, अभी स्क्रैच मोड पे है. लाइक वी वांट टू इंट्रोड्यूस यूज्ड स्पोर्ट्स बाइक ऑल्सो.
So we want to introduce those concepts also. We want to have mobile showroom. We are working on something called showroom in showroom concept. So these are the many ideas which are going on, and soon we will out those things. And you can always follow Luxury Ride on Facebook or Insta or LinkedIn. So there you can have. अगर आपकी टर्नओवर की बात करें, अभी 60 करोड़ से ज़्यादा की आपकी टर्नओवर है कंपनी की, तो कभी फील हुआ था कि एक टाइम ऐसा होगा कि आप जो है इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर उससे पहले आपने सोचा था कि मेरे को बस स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल पीरियड है? क्या प्लान्स थे आपके? देखो उस टाइम तो थोड़ा सा, एक तो होता है जो स्कूल या कॉलेज का टाइम होता है, उस टाइम तो सब हवा ही होता है, तो उस टाइम तो कोई ज़मीन की बात ही नहीं सोचते, उस टाइम तो सब आसमान में होता है, वो सब अलग है। लेकिन जब ये शुरू किया था तो 22 मार्च 2015 को पेनिशा हमने स्टार्ट किया था लग्जरी राइड, अशोक विहार दिल्ली से, एंड वी डिडंट हैव अ सिंगल कार। हमें ये था कि यार गाड़ियाँ कैसे आएंगी भाई, वी वर हैविंग नो मनी ऑफ कोर्स, पर शोरूम बना लिया। ट्रस्ट मी, जिस दिन मुहूर्त किया था ना उस दिन कुछ नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ शोरूम था। तो फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स भी पिच टू इन्वेस्टर, कोई 8 लाख कोई 10 लाख, उस तरीके से हमने करा। और हम सोचते थे कि कभी ना 2 करोड़ रुपए होंगे ना, या 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी तो मज़ा आ जाएगा, कितना काम करेंगे। तो नाउ तो लकीली वी आर हैविंग अराउंड 12 to 15 करोड़ का इन्वेंट्री, एंड विच विल बी इंक्रीजिंग रेगुलरली। सो अभी तो मतलब उस टाइम पे तो वो भी बड़ी बात थी, तो लेकिन पता नहीं होता जी, हमने मेहनत करी बस, मतलब लगे रहे अपने काम। अभी आप किन किन क्लाइंट से डील कर रहे हैं? सो क्लाइंट्स मतलब अराउंड मैं आपको अगर कहते हो तो जैसे ITR बेसिस पे बताऊं तो whoever is having ITR of around 8 lakhs or above, तो they can afford a luxury car and they can buy a car, or somehow मतलब they can be our customers, so like that। मतलब अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस में स्टेप इन करना चाहता है तो उसको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी होगी, और क्या क्या चैलेंजेस आपने अपने टाइम पे फेस किए थे? देखो जी, इसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लग्जरी राइड जिस एरिया को टारगेट या जिस इंडस्ट्री या जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है, दिस इज कम्प्लीटली वर्जिन मार्केट। देयर वाज नो प्लेयर, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स वर देयर, आर देयर, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में people are not working. So we are having some plans also, लेकिन I would say कि especially जैसे हमारा सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर इज अ पेन, स्पेयर पार्ट्स वगैरह दैट्स अ पेन। इन कार्स बाइंग इज अ पेन, प्रोक्योरमेंट इज अ चैलेंज, because we do not buy any accidental cars, because in used तो you can have anything, लेकिन we don't buy, our checkpoints are very clear, we are very sorted about that। 150 checkpoints है तो team has to procure in that way, we have technology involved in our company, तो वो गाड़ियाँ रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग। सो बाइंग अ गुड कार इज अ चैलेंज, जो लग्जरी राइड ने हमेशा अपना मेक श्योर करा कि जो गाड़ियाँ हम बाय कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन की बाय कर रहे हैं, ताकि बायर, देखो आप आ रहे हो पेनिशा, यू आर कमिंग सपोज लग्जरी राइड, सो यू डोंट नो अबाउट द कार, इफ कार इज स्टैंडिंग यू नो कि हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी है, ठीक है, you can't say anything, but you know one thing कि luxury ride से मैं ले रही हूँ। So now luxury ride has a responsibility कि they deliver you the best car which does not give any problem to you in future or anything। So but to buy that car, क्योंकि वो 40-45 lakhs का गाड़ी हम 15 लाख रुपए की रेंज में या 20 लाख रुपए की रेंज में दे रहे हैं, तो that takes lots of efforts to procure a good car, you know। So that is a very challenging, very challenging rather। Selling is still okay, still easy क्योंकि वो तो खड़ी है शोरूम में, AC चल रहा है, बढ़िया हवा आ रही है, तो वो तो सेल्स वाला भी आराम से अपना कन्विंस करके चाय कॉफी पिलाता हो कर ले, बट बाइंग इज अ चैलेंज। देन सर्विस सेंटर, यू टॉक अबाउट गिविंग क्वालिटी टू द कस्टमर, गिविंग कार्स ऑन यू नो ऑन टाइम बेसिस, मतलब पंक्चुअलिटी को मेंटेन रखना, इट्स अ चैलेंज। सर्विस सेंटर हमें बहुत टाइम लगा, हमें 1.5-2 साल, तो 2017 के दौरान जब ये GST का सारा हो रहा था, तो उस टाइम पे वी वर स्ट्रगलिंग फॉर सर्विस सेंटर ऑल्सो। हमने बड़ा उसमें, मतलब एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि वी थॉट के यार सर्विस सेंटर रहने देते हैं, सेल परचेज करते हैं, ओके, बट वी से कि नहीं, चलना है, हमने करना है इसको, वी विल डू दैट, एंड वी हैव डन दैट, वी आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस इन सर्विसिंग ऑल्सो। सो दैट वाज अ यू नो एक कंफर्ट भी है कस्टमर के लिए कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ लग्जरी राइड से और यही सर्विस करके देंगे। देन वी सेल पैकेजेस ऑल्सो, भाई आप 3 साल का हमसे पैकेज ले लीजिए एंड यू बी टेंशन फ्री, तो वो आपके लिए बड़ा एक बंदे को लगता है कि हाँ ठीक है यार, फिर मैं आराम से ले लेता हूँ क्योंकि यहीं आनी है। अदरवाइज आपको क्या होता है, मार्केट से जाकर कहीं गाड़ी ले रहे हैं, कहाँ सर्विस करवाओगे, आपको पता नहीं है, मतलब आपने हाफ काम कर लिया, हाफ जो आपको रेगुलर है और मेंटेनेंस रेगुलरली है,
मेंटेनेंस तो रेगुलरली चल रही है, every 3 months or 6 months or so like that. So that was very challenging. And then opening in multiple cities. Now we are having showroom in 7 cities. Okay. So मतलब मैनेजिंग, एक तो होता है एक शोरूम चलाना, एक होता है कि उस कॉन्सेप्ट को स्केल अप करना, एंड वी हैव सम विजन्स आल्सो व्हिच विल डिस्कस. सो इट्स चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, बट जब पैशन इन्वॉल्व हो तो नथिंग. किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी तरीके से. तो अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जिससे वो सक्सेसफुल हो सके उस बिजनेस में? डिजिटल जी, आई वुड से डिजिटल, बट उस पर ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है. जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो कंज्यूमर का है और उसमें तो आपको उसी तरीके की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो डिजिटल यू हैव टू गो. तो हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए तो डिजिटल ही है जी. आई वुड से कि मेजरली डिजिटल होना चाहिए, देन ऑफलाइन होना चाहिए, लाइक इवेंट्स, रोड शोज, सम रैलीज सॉर्ट ऑफ थिंग. तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, बट मेजरली आई वुड से डिजिटल. एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर न्यू एंटरप्रेन्योर्स? आई वुड से वन थिंग, जो 3 इडियट फिल्म में ना आमिर खान ने भी कहा हुआ है, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उस फिल्म का भी और उस चीज़ का भी, कि जो आमिर खान ने बात बोली थी कि अगर लता मंगेशकर के फादर ने लता मंगेशकर को बोला होता कि तू बैट पकड़ और बैट पकड़ के बैटिंग कर, और सचिन को कहा होता ले माइक पकड़ और तू गाना गा, तो आज वो कहाँ होते और अभी वो कहाँ हैं. पूरी दुनिया जानती है उनको. तो फॉलो योर पैशन, व्हाट इज यू आर. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा, सो व्हाट यू आर ऑफ. डोंट गो ऑन समवन एल्स यू नो सेइंग और कुछ और किसी तरीके से. फॉलो योर पैशन एंड जस्ट फॉलो योर पैशन. आई वुड से दिस ओनली. न्यू एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं? I would say ji, IID has created a very good platform, incubation center where new ideas can come and they can have learnings. They can join the incubation center, and of course they can create history. They can get successful. Thank you so much.